It was in 2018 August, in the span of a few days, that Indian sprinter Duti Chand picked up 2 silver medals in the 100 and 200 meters. सबसे पहले सबको नमस्कार। आज मैंने 200 में जो मेडल जीता मैं सारे इंडियन पॉपुलेशन को डेडिकेट कर रहा हूँ। Except in the era of PT Usha, did we see a woman sprinter challenge for supremacy in the Asian continent. It had not come easy for Duti. She had fought most of the way. Humble background, running on the village sand in Odisha, to fighting her way into the national consciousness, and then to be ostracized by the very federation she was running under. The Athletic Federation of India, who said she will only be allowed to compete if she brings down her testosterone levels, loosely at that time translated as a male running in a women's race. Hurt, humiliated, she fought the case against the IAAF, who made her sit out because of hyperandrogenism. Duti won the case and reinstated herself back on the track. Jakarta should have been the platform from where she could have propelled herself onto the world stage. Competitions across Europe, World Championships, and seeking a semi-final at the Olympics. Popular with the media, called for functions, financially healthy after the Odisha government gave her 3 crores for the twin silver medal in Jakarta. Somewhere along the way, Duti also veered off the track. The focus, instead of bringing her timings down to 11.10 and further, went in seeking self-glorification. Her coming out in the open about her same-sex relationship dominated headlines. Sprinting took a backseat. Duti, the celebrity, took center stage. Training sessions tapered off, timing suffered, and then out of the blue she tested positive. The anti-doping disciplinary panel banned her for 4 years. Duti appealed, but the anti-doping appeal panel found no reason to change the ban. Athletes getting banned is not new either in India or on the international stage. They make comebacks, win medals, but legacies are tarnished. Does Duti have it in her to make a comeback, win medals once again? It's doubtful. When asked about the ban and why did she take the substance, Duti said she was sad about the verdict and that in her medal-laden career she had never tested positive. But so did Justin Gatlin and Marion Jones, the latter losing all her 5 Sydney Olympic medals. 2023 जनवरी में तो मुझे पहला लेटर उन्होंने दिया था नाडा की तरफ से कि मेरा जो सॉल्ट गया था यूरिन, इसमें पॉजिटिव सॉल्ट आया था। इसको पूरी तरह से वेरीफाई करके वकील के माध्यम से सबमिट किया था कि ये जो सॉल्ट आया है, पहले तो मुझे मालूम नहीं था मेरे को कैसे गया मेरी बॉडी में, और इसमें सबमिट भी किया। बाद में पता चला कि सारे जो डॉक्यूमेंट इंक्वायरी करने के बाद सॉल्ट का जो टेस्ट हुआ था, सारा इंक्वायरी के बाद पता चला कि मेरी बॉडी में जो मेडिसिन गया था, वो मेडिसिन में एक पॉजिटिव सॉल्ट आया था, और वो मेडिसिन मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इनके सजेस्ट के हिसाब से लिया था मैंने। उन्होंने मुझे दूसरी गलती के बजाय मेरे को उन्होंने दोषी साब्यस्त करके मुझे 4 साल का बैन लगा दिया था। मैंने फिर से अपील किया था, क्योंकि 25 डेज़ दिया गया था मुझे इसके ऊपर अपील करने के लिए, और 2023 जून में मैंने अपील भी किया था, लेकिन ये फिर भी उन्होंने मेरा केस को डिसमिस कर दिया। रूल के हिसाब से जो केस को आर्गुमेंट करना चाहता मैं तो सारा सबमिट किया था, जो डॉक्यूमेंट माँगा गया था मुझे सारा सबमिट किया मैंने। उसमें ही उन्होंने क्लियर भी लिख दिया कि फिजियोथेरेपिस्ट कभी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो इतना मालूम नहीं कि कौन मेडिसिन सजेस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को मेडिसिन सजेस्ट किया था, इनके साथ में पूरी 7 साल काम किया था मैंने। Athletes do take medicines which are not prescribed or checked thoroughly. Someone like Duti should have known what to ingest and what not to. It's a little too late in the day to realize that fatal error. तो गलती तो इसी में किसी का नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टाइम का वक़्त होता है। क्योंकि देखो मेरा पेन इतना बढ़ गया था, और पेन को रिलीव करने के लिए जितना सारा मैं दवाई लिया था, चाहे न्यूरोपेन हो, कुछ जो भी जो मुझे मुझे मेडिसिन सजेस्ट किया गया था, सारी कुछ लेने के बाद भी मेरा पेन ठीक से रिलीव नहीं हो रहा था, वो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था। और मैडम ने, मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट है नवनीता मैडम, उन्होंने मुझे जब वो मेडिसिन दिया, वो भी तो एक्सपर्ट है ना फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी जानबूझ के तो दिया नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन ये जब बॉडी में गया तो पता चला कि इसमें पॉजिटिव सॉल्ट है। However, Duti is still confident of making a comeback once the ban period is over. Age will not be on her side, confidence would have eroded, motivation would need propping up. 2013 से लेके 2022 तक हर नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मैं मेडल दिया है। ऐसा कोई ईयर नहीं जिसमें मेरा मेडल है नहीं। बहुत बड़ा-बड़ा जो कॉम्पिटिशन है, ओलंपिक ही हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हो, हर जगह में मैं पार्टिसिपेट करके
अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया मैंने। तो 2024 में भी ऐसा उम्मीद था, 23 में भी उम्मीद था कि मैं एशियन गेम में मेडलिस्ट बनूंगी, 2024 ओलंपिक भी क्वालिफाई करूंगी, क्योंकि अभी भी मेरा वर्ल्ड रैंकिंग 23 में चल रहा है अभी। Duti did speak to the physio, who she believes gave her the substance without realizing what it contained. हाँ, उनसे मैं बात किया, उन्होंने बोला देखो दूती, तू इतना साल से तेरे साथ में काम कर रही थी, काफ़ी बड़ा-बड़ा भी टूर्नामेंट के लिए तुझे मैं तैयारी किया है, कभी ऐसा स्टेप लिया नहीं कि तुझे मैं बदनाम करूँ, और तुझे बदनाम करके फ़ायदा भी क्या है? तू ऐसे भी तो इंडियन की चैंपियन हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल मेडलिस्ट हो, तो तुझे बदनाम करके क्या मिलेगा मुझे? और तेरे साथ तो मैं काम कर रही थी, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं जानबूझ के तो किया नहीं, अननोइंगली चला गया। On the question of going abroad for training after Jakarta, Duti remains non-committal. She does believe that her timings, despite not training abroad, were still good and that she did qualify for Tokyo Olympics. एशियन गेम में टाइमिंग किया था 11.31, और 11.31 से मैं 11 पॉइंट 2019 में 11.22 किया था रांची में, और 11 तो 20 में तो कोविड आ गया, स्पोर्ट्स बंद हो गया, फिर 21 में भी नेशनल नंबर जो रिकॉर्ड होल्डर किया मैंने, जो पटियाला में हुआ था इंटर स्टेट में, इसमें तो 11.17 करके टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था मैंने। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, हमारा स्पोर्ट्स अच्छा से हो रहा था, लेकिन वो जो इंजरी हो गया लास्ट मोमेंट में, जो रिले के भागने के टाइम में जब मैंने ट्रैक में जंप मार दिया, गिर गया, उस दिन से मेरा पेन शुरुआत हो गया, और फिर भी उसी पेन में भी प्रैक्टिस करके मैं 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम भी क्वालिफाई किया मैंने। इंडिविजुअल मैंने 100 मीटर भी उधर रिप्रेजेंट किया था, और रिले में भी रनिंग किया था लास्ट पोजीशन में। In Odisha, Duti is an icon. Maybe a bit of the shine has come off after the doping ban and her histrionics on the same-sex issues. Her run-ins with the state government on financial help for training have not entirely endeared her to the fans. She still thanks the former Chief Minister Naveen Patnaik for what he did for sports. Does she hope that a national record will be broken in the near future? वो तो मैं नहीं बोल सकती कि कौन टूटेगा कि कौन नहीं टूटेगा, लेकिन मैं उम्मीद रखा था कि इससे और बेटर टाइम करने के लिए 11.11 टारगेट था मेरा पेरिस ओलंपिक के लिए, और उसी तरह से मैं बॉडी को भी बनाया था मैंने, क्योंकि मैंने नवंबर में मेरा ट्रेनिंग पहली बार शुरू किया था मैंने, और नवंबर से, क्योंकि शादी तो था मेरा सिस्टर का, दिसंबर टारगेट सर ने बोला था कि जो ट्रेनिंग हमने किया है वही अच्छा ट्रेनिंग था, इसलिए टाइमिंग 11.17 आया है, हम इस बार 11.11 का टारगेट करके ट्रेनिंग करेंगे। Comebacks are tough, agrees Duti, more at the Asian Games and at the Olympic level. She takes heart from the fact that athletes world over are competing beyond 30 years of age. She knows qualifying for big competitions will take a big heart, but she at the moment is looking forward to competing till 35 after the ban is over. डोपिंग वाला सीन तो ऑलरेडी लोग भूल चुका है, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि आज तक आप देखे होंगे जितने सारे बच्चे डोपिंग में पकड़ गए हैं, कोई भी आके मीडिया में सामना नहीं किया, लेकिन मैं एक लड़की हूँ जो मीडिया को बार-बार सामना कर रहा हूँ, जितना भी सवाल पूछ रहे हैं मुझे, मैं सबका सवाल का आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने डोपिंग किया ही नहीं।